Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Those who are watching me online, I welcome you all to this online training session where we are learning easy English conversation. And in this process, we have learned many lessons. Like we learned the basic concepts of English language, where we learned a method that is called 333. Then we learned tenses, parts of speech, and now we are learning modal auxiliaries. This is the third part of modal auxiliaries. We have recorded in previous two videos about modal auxiliaries where we discuss more than 6 modals. And once again, let me remind you the importance of modal auxiliaries. Modal auxiliaries are like helping verb, but modal auxiliaries are very important in your communicative English. When you communicate with the people and when you listen to someone, if you want to understand properly English language and if you want to communicate English language properly, then you need to be perfect with your modal auxiliaries. What are the modal auxiliaries? Simply can, could, may, might, shall, should. These words are called modal auxiliaries. Interestingly, these words individually don't have any meaning, but when we put these words in a sentence, then they make a meaningful sentence, and we use these modals according to a particular situations. Okay, so it is different from tenses. Tenses we have systematic structure, and in tenses we have particular time, but modal auxiliaries are very easy to understand. Modal auxiliaries have the common structure. All the modals you use, you will have the same structure and you will have the same form of verb. That is, most of the time we'll use V1, the first form of verb. Okay, so why do we use modal auxiliaries? So modal auxiliaries we use to suggest people, to request people, to show the possibility, to show the ability, to show our mood and attitude. So these are the purpose of modal auxiliaries, and modal auxiliaries are very important in our conversation. जब हम बात करते हैं तो बात करते समय modal auxiliaries का बहुत ज़्यादा पार्ट हम इस्तेमाल करते हैं. तो अगर आप modal auxiliaries में परफेक्ट नहीं हो, अगर आपको modal auxiliaries में अगर कंफ्यूजन है, तो बिलीव मी आप इंग्लिश बोलने में आपको बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी. So if you want to become a perfect English speaker, you should be perfect with modal auxiliaries. Now the good news is that we have very limited modal auxiliaries. Here we are going to discuss about only 14 modal auxiliaries. सिर्फ 14 modal auxiliaries को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, अब हर एक modal auxiliaries का एक से ज्यादा इस्तेमाल है, अलग अलग सिचुएशन पे इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, जिस तरह हमने अभी तक के कैन, मे, कुड, शुड, मस्ट और टू, विल, वुड और यूज टू अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया. इसमें से बहुत सारे मॉडल ऐसे थे जिनका एक से ज्यादा इस्तेमाल था, जैसा कि मे का एक इस्तेमाल था पॉसिबिलिटी दिखाना. मे का दूसरा इस्तेमाल था आपको किसी को विश करना. ठीक है, तीसरा उसका जो इस्तेमाल था वो था रिक्वेस्ट. ठीक है, तो एक एक मॉडल ऑक्सिलरीज के एक से ज्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं. ठीक है, चलिए, सो नाउ विल टेक द रिमेनिंग मॉडल ऑक्सिलरीज. आज जो बचे हुए मॉडल ऑक्सिलरीज है हम वो लेंगे. ठीक है, तो कल हमने जैसे लिया था यूज टू एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल ऑक्सिलरीज है जो हमको इस्तेमाल करना चाहिए. यूज टू हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे काम के बारे में बात करते समय जो हम पास्ट में करते थे लेकिन अब नहीं करते. तो इन शॉर्ट हम उसको कहेंगे टू टॉक अबाउट अ डिसकंटिन्यूड हैबिट वी यूज टू. For example, I used to smoke cigarette. It means मैं पहले सिगरेट पिया करता था, मीन्स अब नहीं पीता. एक ऐसी हैबिट है जो पहले मैं करता था अब नहीं करता. ठीक है, सो ये है यूज टू. उसके बाद हम लेंगे नीड टू. देखिए, यहां कुछ ऐसे वर्ड है जिनको टू लगाना जरूरी है. अगर आपने उनको टू नहीं लगाया तो वो वर्ब बनेंगे, मॉडल नहीं बनेंगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यूज्ड. अगर आप सिर्फ यूज्ड इस्तेमाल करते हो तो वो हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी इस्तेमाल करना. ठीक है, जैसे आप अगर कहते हो कि आई यूज्ड ब्लैक जैकेट, यानी मैंने ब्लैक जैकेट इस्तेमाल किया था, ये उसका मीनिंग हो रहा है. ठीक है, लेकिन जब आप उसको टू लगा देते हो तो उसके मीनिंग क्या हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आई यूज टू वेयर ब्लैक जैकेट, यानी मैं ब्लैक जैकेट पहना करता था. देखिए फर्क समझ में आया. यूज्ड अगर बोल रहे हो तो एक बार एक चीज इस्तेमाल की थी,
लेकिन यूज टू अगर बोलते हो तो इसका मतलब मैं ये काम बार बार किया करता था, ठीक है। तो अगर यूज इस्तेमाल करेंगे तो वो वर्ब है, लेकिन उसको अगर टू लगाएंगे तो मॉडल ऑक्सिलरी बनेगा, ठीक है। उसी तरह नीड टू, सिर्फ अगर आप नीड इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब है कि चाहिए। अगर मैं कहूं कि आई नीड अ बुक, तो मुझे एक बुक चाहिए, ठीक है। लेकिन जब मैं उसको टू लगाऊंगा तब उसका मीनिंग वो बन जाएगा मॉडल, ठीक है। और उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब नीड के साथ में हम नीड टू के साथ एक और एक वर्ब लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीड टू का इस्तेमाल कहाँ होगा, टू शो द नेसेसिटी, यानी कोई काम करने की कितनी जरूरत है ये बताने के लिए नीड टू इस्तेमाल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं आपको कि आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा यू नीड टू प्रैक्टिस इंग्लिश। अगर मुझे किसी को कहना है कि तुम्हें अच्छा बिहेव करना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि यू नीड टू बिहेव प्रॉपरली, ठीक है। किसी तीसरे पर्सन के बारे में अगर हमको बोलना है ही शी इट, तो हम उसके बारे में कहेंगे कि ही नीड्स टू कम ऑन टाइम, शी नीड्स टू प्रिपेयर फूड एवरी डे। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नीड टू, जिसका इस्तेमाल ये है कि जब किसी को किसी चीज की काम करने की जरूरत है, करना चाहिए उसने ऐसा, जब ये हमको बोलना है तब हम इस्तेमाल करेंगे नीड टू, ठीक है। अब इसमें अगर थर्ड सिंगुलर पर्सन होगा तो उसको एस लगा देंगे, नीड को नीड्स टू हो जाएगा। अगर आई यू वी दे है तो नीड टू, लेकिन अगर ही शी इट है तो नीड्स टू। ये सिर्फ अकेले नीड टू में ही होगा, बाकी सब में नहीं होगा। बाकी सबका कोई एस ई एस का यहाँ पर इशू नहीं है, ठीक है। तो नीड टू एक बहुत ही कॉमन मॉडल है जो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे किसी को कोई सजेशन देने के लिए, जैसे यू नीड टू कॉल मी इन द मॉर्निंग, व्हाई डू यू कॉल मी इन द इवनिंग, ठीक है। सो यू नीड टू कॉल मी इन द मॉर्निंग, ठीक है। तुम्हें मुझे सुबह फोन करना चाहिए, ये हो गया नीड टू, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास शाल। शाल जो है ये टेंसेस में हम इस्तेमाल करते थे पहले, जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस में आई और ई के साथ शाल इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ विल है टेंसेस में। तो शल का क्या इस्तेमाल है, तो शल यहाँ पर एक तरह से हम इसका इस्तेमाल जो है सिर्फ कंफर्मेशन के लिए लेते हैं, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल बहुत ही कैजुअल रिक्वेस्ट भी उसको बोल सकते हैं, या कंफर्मेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी का मोबाइल इस्तेमाल करना है, ठीक है, और वो आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, नानी बोलेगा, तो आप उसको बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज और बहुत ज्यादा पोलाइट लैंग्वेज में नहीं बोलते हो। आप डायरेक्ट क्या करोगे, पहले फोन हाथ में उठा लोगे और फिर उसको बोलोगे शल आई मेक अ कॉल फ्रॉम योर फोन। इसका मतलब आप सिर्फ कंफर्मेशन ले रहे हो, और अगर रिक्वेस्ट भी है तो ये बहुत कैजुअल रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये आमतौर से अपने सीनियर्स और एल्डर के साथ में ये नहीं करना चाहिए। तो ये है शाल, जो कि सिर्फ एक तरह का कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे आप अपने फ्रेंड के लिए वेट कर रहे हो और वो आने में टाइम लगा रहा है, आप उसको फोन करोगे और कहोगे शल आई वेट फॉर यू और शल आई गो, यानी मैं रुकूं या जाऊं। तो ये शाल का इस्तेमाल है जो सिर्फ शुरू में होगा, ठीक है। उसी के बाद में है माइट। अब माइट, वैसे माइट का इंडिविजुअल मीनिंग होता है ताकत। अगर माइट को एज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे तो माइट का मीनिंग होता है ताकत। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में एक प्रोवर्ब है माइट इज राइट, यानी जो ताकतवर होता है वो सही होता है। लेकिन यहाँ मॉडल ऑक्सिलरीज में अब इस माइट का वो मीनिंग नहीं है। यहाँ पर माइट क्या है तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पहले मे, जैसा मे है वैसा माइट है, ठीक है। तो मे से हम पॉसिबिलिटी बताते हैं, माइट से भी हम पॉसिबिलिटी बताएंगे, ठीक है। तो जैसे मे से हम कहते हैं कि अगर किसी के आने के चांसेस ज्यादा है तो हम कहते हैं कि ही मे कम, और लगता है कि चांसेस कम है तो हम कहेंगे कि ही माइट कम, शायद ही आए। मे में हम कहते हैं वो शायद वो आएगा, और माइट में हम कहेंगे कि शायद ही वो आएगा, यानी दोनों भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। लेकिन मे में पॉसिबिलिटी हम ज्यादा दिखा रहे हैं, माइट में थोड़ी कम दिखा रहे हैं, ठीक है। और वैसे माइट जो है इसको मे का पास्ट भी कहा जाता है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है हैव टू, हैज टू और हैड टू, ठीक है। अब ये तीनों एक जैसी है, ये एक जैसा इनका इस्तेमाल है, ठीक है। जैसे कि हैव टू और हैज टू, इनका मीनिंग क्या है? इनका मीनिंग जो है बिल्कुल शुड जैसा ही है, ठीक है, शुड जैसा ही है। तो यहाँ पर किसी को अगर कहना है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा हैव टू, हैज टू, यानी अपने आप को सजेशन देने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर लेट आता है तो हम कहेंगे कि यू हैव टू कम ऑन टाइम। कोई अगर
अगर तुम इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं करते हो और इंग्लिश अभी इंप्रूव नहीं हो रही है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा, यू हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश। तो ये हो गया हैव टू, ठीक है। अब यही चीज अगर हम थर्ड सिंगुलर पर्सन के लिए इस्तेमाल कर रहे, ही, शी, इट या कोई सिंगल पर्सन का नाम लेकर, तो उसको हैज लग जाएगा बस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हो कि उस लड़की की इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही है, तो मैं कहूंगा शी हैज टू प्रैक्टिस इंग्लिश। उस लड़के की हैंडराइटिंग नहीं सुधर रही है, तब मैं कहूंगा ही हैज टू राइट 10 पेजेस एवरी डे। समझ रहे आप? तो ये है हैज टू और हैव टू, जिसमें हम सजेशन दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए, उसे ऐसे करना चाहिए, ठीक है। अब इन्हीं का पास्ट है हैड टू। हैड टू जो है ये पास्ट में, जैसा कल अगर आपने कोई काम किया, ठीक है, और आज मैं पूछ रहा हूं कि तुमने वो क्यों किया, तब आप कहोगे कि मुझे ऐसे करने पड़ा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कल क्लास से जल्दी चले गए घर, 5 मिनट 10 मिनट पहले चले गए और मैंने आपको देखा, तब नहीं पूछा, दूसरे दिन मैं आपको पूछूंगा कि वाई डिड यू गो टू होम अर्ली, तब आप कहोगे माई मदर वॉज नॉट वेल सो आई हैड टू गो अर्ली। आई हैड टू गो अर्ली यानी मुझे कल जल्दी जाना पड़ा, ठीक है। उसी तरह पास्ट में कोई काम था, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर कॉमर्स में एडमिशन ले लिए और मैं ये कह रहा था कि यार आपको साइंस में लेना चाहिए था, तो फिर आप कहोगे कि नहीं मेरे पापा की सजेशन थी इसलिए मुझे कॉमर्स लेना पड़ा, ठीक है। तो आप कहोगे आई हैड टू चूज कॉमर्स बिकॉज ऑफ माई फादर, ठीक है। तो हैड टू क्या है, हैव टू हैज टू का पास्ट में होगा कि जो काम हो गया वो मुझे करना पड़ा, ये बताने के लिए हैड टू इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इस तरह से अभी तक हमने जो है 14 मॉडल ऑक्सिलरीज कंप्लीट कर लिए, 14 मॉडल ऑक्सिलरीज। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू दैट go to all previous videos and practice all modal auxiliaries. Better you should go to our YouTube channel Ask Parvez Khan. So watch all the videos on our YouTube channel, subscribe it and share with maximum people, those who want to improve their English. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज में ज्यादातर मॉडल ऑक्सिलरीज क्या काम कर रहे हैं हम थोड़ा सा समरी लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ काम 3 है लेकिन मॉडल्स बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 कैटेगरीज है काम की, बहुत सारे मॉडल्स इस्तेमाल करके हम सजेशन दे रहे हैं, बहुत सारे मॉडल्स इस्तेमाल करके हम रिक्वेस्ट बना रहे हैं और बहुत सारे मॉडल्स इस्तेमाल करके हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर अगर आपको ये कैटेगरीज के मॉडल्स अगर पता चल जाए तो आप कम से कम एक मॉडल तो सही इस्तेमाल कर ही लोगे सजेशन के लिए, ठीक है। तो सजेशन के लिए कौन कौन से मॉडल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो शुड, ought to, मस्ट, नीड टू, हैव टू, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे आपको सजेशन देनी है कोई एक चीज के लिए तो मैं इनमें से कोई भी मॉडल इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, you ought to respect your parents, you must respect your parents, you need to respect your parents, you have to respect your parents, you should practice English, you have to practice English, you ought to practice English, you must practice English and you need to practice English। तो ये क्या है, ये जो हमारे 5 मॉडल्स है इनका इस्तेमाल हम सजेशन देने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी रिक्वेस्ट। देखिए रिक्वेस्ट के लिए इतने मॉडल्स है लेकिन अफसोस है कि हम लोग रिक्वेस्ट नहीं बनाते, हम डायरेक्ट लोगों को ऑर्डर देते रहते हैं, पानी लाओ, इधर आओ, उधर जाओ, तुम्हारा नाम क्या है, ये सब ऑर्डर्स हो गए। रिक्वेस्ट बनाइए, रिक्वेस्ट, ठीक है। तो रिक्वेस्ट बनाने के लिए आपको ये मॉडल्स की जरूरत है, ठीक है। तो कौन से मॉडल्स है, शाल, कैन, मे, वुड, विल एंड कुड। ये ऐसे मॉडल्स है जिनकी बिना पर हम रिक्वेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सीक्वेंस के हिसाब से जो जितना कम इंपॉर्टेंट है जो जितना कैजुअल है वो सबसे पहले हमने लिया है। जैसे शाल, जैसे मैंने कहा शाल बहुत कैजुअल रिक्वेस्ट है, एक तरह का कंफर्मेशन है। जब आप अपने फ्रेंड, बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो तो आप बहुत कैजुअली बात करते हैं, रिक्वेस्ट नहीं करते बहुत ज्यादा फॉर्मली, तब वहां शाल इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे आपको घर जाना है और आप बैठे हो उसके पास, आप उठ के खड़े हो जाओगे, आप चप्पल पहनोगे और आप कहोगे शल आई गिव, शल आई लीव, ये हो गया शाल। वहीं पर आप कह सकते हो कैन आई कम, कैन आई गो, कैन आई कॉल यू लेटर, कैन आई यूज योर मोबाइल, ये हो गई, ये भी कैजुअल रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब थोड़ी सी ऑफिशियल रिक्वेस्ट, मे, लाइक मे आई सिट हियर, मे आई कम इन, मे आई यूज योर फोन, मे आई टेक दिस फाइल। उसी तरह वुड यू प्लीज कॉल मी लेटर, वुड यू कम विथ मी, वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर, वुड यू हेल्प माई ब्रदर, ये है वुड। उसी तरह है विल, विल बहुत सिंपल है,
एक तरह का सिंपल फ्यूचर टेंस का क्वेश्चन है वो, ठीक है, लेकिन प्लीज लगाएंगे हम। जैसे विल यू प्लीज कॉल मी लेटर, विल यू प्लीज कम टू माई होम, विल यू प्लीज हेल्प मी इन माई एग्जाम, विल यू प्लीज वेट फॉर मी, ये हो गया विल। कुड, सबसे अच्छी रिक्वेस्ट, सबसे पोलाइट रिक्वेस्ट जिसको बोलेंगे, यानी सबसे ज्यादा विनम्र रिक्वेस्ट कुड से बनती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल could you please call me later, could you please wait for me, could you please stay here, could you please tell me what is the purpose, could you please meet me in the evening। तो ये है 6 मॉडल्स जिसकी बिना पर हम रिक्वेस्ट बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 मॉडल्स ऐसे हैं जिनसे हम पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है मे सबसे अच्छा मॉडल है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, ठीक है। पॉसिबिलिटी यानी शायद ऐसे होगा, शायद वो ऐसे करेगा, ये बताने के लिए हम पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी के लिए 3 मॉडल है, कैन, मे, कुड, ठीक है। लेकिन सबसे फेवरेट है मे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका दोस्त आज आने वाला है तो आप कह सकते हो ही मे कम टुडे, शी मे कम टुडे, एंड माय फादर मे गिव मी अ गिफ्ट, माय टीचर मे कॉल मी, माय रिलेटिव्स मे कम टू माय होम, ये हो गया मे। कैन भी इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो आप। अ गेस्ट कैन कम टू माई होम टूडे, माई फ्रेंड कैन अराइव एनी टाइम, माई टीचर कैन हेल्प मी इन एग्जाम, माई फादर कैन गिव मी अ सरप्राइज गिफ्ट, ठीक है। उसी तरह कुड, दे कुड हेल्प अस, इट कुड हार्म यू, एंड इट कुड बी वेरी डेंजरस, डोंट गो देयर, ठीक है। तो ये है मॉडल्स की 3 मेजर कैटेगरीज, जहां पर हम 5 मॉडल्स बनाकर सजेशन बना सकते हैं, 6 मॉडल्स लेकर हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और 3 मॉडल्स ऐसे हैं जो पॉसिबिलिटी बताते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज का आखिरी सेशन, जिसमें हमने सारे मॉडल्स यहाँ पर हमने फिनिश कर दिए। अब मॉडल्स का नेगेटिव कैसे बनता है, तो बहुत सिंपल है, किसी भी मॉडल के साथ नॉट लगा दो। जैसे आई कैन ड्राइव, आई कैन नॉट ड्राइव, यू शुड wear a red shirt, you should not wear red shirt, he may come today, he may not come today, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है नेगेटिव बनाने का, किसी भी मॉडल को आप नॉट लगा दो उसके बाद में, और आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, वो हो गया आपका नेगेटिव, ठीक है। तो बस यही आपको बताना था। एक बार और स्ट्रक्चर बता दूं, मॉडल ऑक्सिलरी का बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, सारे मॉडल्स के लिए सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश, नेगेटिव, यू शुड नॉट प्रैक्टिस इंग्लिश, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके सारे मॉडल्स बनेंगे, ये कॉमन स्ट्रक्चर है सभी मॉडल्स के लिए। सो आई होप यू ऑल विल प्रैक्टिस दिस मॉडल ऑक्सिलरीज, बिकॉज मॉडल ऑक्सिलरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कम्युनिकेटिव इंग्लिश। इफ यू आर गुड एट मॉडल ऑक्सिलरीज, believe me, it will be very easy for you to make sentences spontaneously and to enjoy your conversation in English language. So thank you so much for joining me today. So we'll stop here. See you tomorrow. Take care.